Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hussain Abbas and you are watching SH Knowledge. Today we are going to learn about preposition in and other compound prepositions made by preposition in. For example, within, into and inside. So first we go through the definition of preposition. Preposition is basically a part of speech that is used before a noun and it shows its relation to the other part of the sentence are already described. Now it describes how both nouns are related with each other. So when we talk about preposition in, there is a question comes in our mind that we are talking about a place inside something, in a place, at a location, or sometimes we use prepositions to give a reference of time, and likewise we use preposition in when we are going to describe general physical locations of something or somebody or some person at a certain place. So first of all, we will define preposition in and how it is used in different sentences. So first of all, we will give the reference of time for preposition in. And what is the preposition of time? Preposition of time is a preposition that tells us when an action takes place. Action is done by the subject. अगर हम preposition in की बात करते हैं कि वो time frame में हमें क्या information देती है, हमें क्या description मिलती है, तो preposition in का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमने शॉर्टर ड्यूरेशंस ऑफ टाइम को, या हमने लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम लाइक डेज हैं, मंथ्स हैं, सेंचुरीज हैं, ईयर्स हैं, इनको हमने टाइम फ्रेम में डिस्कस करना होता है. तो सबसे पहले हम लोग लार्जर पीरियड ऑफ टाइम्स की बात कर लेते हैं. लार्जर पीरियड ऑफ टाइम्स में ईयर्स, मंथ्स, डेज और सेंचुरीज इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947. So 1947 is a long span of time, a long duration of time. And likewise, we can say internet was invented in 21st century. So century is a longer period of time, a collective noun that we use for 100 years. So it is a big span of time. And if we talk about months, we will visit Murray Hills in December. Now December is a larger duration of time, a month of 30 days. So we can say we will visit Murray Hills in December. So जब हमने एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम preposition in का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हमें सीजन्स भी जो मिलते हैं, लाइक स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, ऑटम है. सो इन सीजन्स में भी आपकी जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो हम जब इनको मेंशन करते हैं तो preposition in का इस्तेमाल करते हैं. For example, we visited northern areas in summer, or we can say we will visit Murray Hills in winter to enjoy the snowfall. So जब हमने seasons को mention करना होता है, क्योंकि वो भी एक larger period of time होता है, तो हम preposition in का इस्तेमाल करते हैं. And for mentioning days, for example, I shall meet you in 2 days, कि मैं आपको 2 दिनों में मिलूंगा. So period of time की जो span होता है, जो इसकी length होती है, वो shorter या longer हो सकती है. But we use preposition in to describe periods of time. इसके साथ साथ अगर हम लोग moments of the day की बात करते हैं, for example morning है, I took my breakfast in the morning, I will play cricket in the evening, and we also say that I shall meet you in the afternoon, कि मैं आपसे आफ्टरनून या दोपहर के वक्त मिलूंगा. But we use add with noon, but in preposition is used with afternoon. So ये आपने ख्याल रखना है कि preposition in का जो इस्तेमाल है स्पेसिफिक moments of the day के साथ किया जाता है, like morning, afternoon और evening. Likewise हम लोग कुछ time phrases का इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम preposition in का इस्तेमाल करते हैं. For example, we say in the past there were no proper means of transport. Now in the past भी एक time frame है, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है. So past के साथ हम लोग in लगाते हैं. Likewise अगर हम future की बात करते हैं, in the future. फॉर एग्जाम्पल आई शैल एक्सपैंड माई बिजनेस इन फ्यूचर, कि आने वाले वक्त में मैं अपना कारोबार जो है उसको वुसअत दूंगा. इसी तरह से हमें कुछ और टाइम फ्रेजेस मिलती हैं, लाइक लास्ट फ्यू. अब लास्ट फ्यू जो है ये आपको बताता है कि गुजरे हुए ज़माने की कुछ मोमेंट्स की बात हो रही है. वो आवर्स हैं, वो डेज हैं, वो मंथ्स हैं, वो ईयर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल population has grown very much in the last few years, in the last few years, in the last few minutes. For example, I completed my paper in the last few minutes, कि मैंने चंद एक मिनट पहले जो था वो अपना पेपर जो था वो कंप्लीट कर लिया था. सो preposition in का जो इस्तेमाल है, shorter durations of time, larger durations of time,
एंड मोमेंट्स ऑफ द डे में हम लोग करते हैं। और इन टाइम फ्रेम्स के साथ प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करके हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये काम मुकम्मल करना है, कि आपने वो जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें ये काम देखा, ये काम सीखा, ये काम करने वाले हैं। सो आपको एक टाइम का पता होता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता होता है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर रहते रहते या रहते हुए आप वो काम कंप्लीट करते हैं। सो दिस वाज द यूजेज ऑफ preposition in with time phrase. Now we will learn about how preposition in is used to describe the place of an object, an individual or something else. सो बेसिकली प्रेपोजिशन इन ही हमें यह बताती है कि एक चीज की लोकेशन की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, उसकी प्लेस की बात हो रही है, इन पे वो किसी जगह में मौजूद है। सो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो प्रेपोजिशन इन जो है वो जनरल फॉर्म में एक पॉइंट ऑफ लोकेशन की बात करती है। तो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो वो ये इसके लिए बेहतर रहेगा कि एक चीज किसी जगह के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द बॉय इज इन हिज रूम, कि उस लड़के की मौजूदगी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन या उसकी जो प्लेस है जहां पर वो मौजूद है वो कहाँ पर है, रूम के अंदर है। लाइकवाइज वी कैन से स्टूडेंट्स आर इन देयर क्लासेस, के जो तुलबा हैं वो जमात में मौजूद हैं, एक खास लोकेशन पर मौजूद हैं। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं द बुक्स आर इन द ड्रॉर, के किताबें जो हैं वो ड्रॉर में मौजूद हैं। तो जस्ट हम एक लोकेशन या जगह की बात करते हैं, एक खास मुकाम के अंदर किसी भी चीज की मौजूदगी, तो हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस की बात करते हैं, बिगर स्पेसेस की बात करते हैं, तो भी हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान इज अ कंट्री एंड कंट्री इज अ बिगर प्लेस, अ बिगर स्पेस टू लिव इन। तो जब हम एक मुल्क की बात करता हूं तो जस्ट मैं अपनी एक फिजिकल पोजीशन या लोकेशन की बात करता हूं, मैं कहां पर मौजूद हूं। इसी तरह से जब हम टाउन्स की बात करते हैं, सिटीज की बात करते हैं, स्ट्रीट्स की बात करते हैं, तो जस्ट हम फिजिकल लोकेशन की बात करते हैं। आई लिव इन मॉडल टाउन, आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द लास्ट 10 years। सो इस तरह से हम एक फिजिकल लोकेशन को बताने के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी फिजिकल लोकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, वी कैन से कि पूरी दुनिया को जब हम रेफर कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा है, कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, तो पूरी दुनिया को एज अ फिजिकल लोकेशन बताने के लिए भी हम इन द वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम ओशंस के साथ, रिवर्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ, पूल्स के साथ, लेक के साथ भी किसी एनिमल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लोकेशन बताने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय वॉज स्विमिंग इन द पूल, ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, ही वॉज टेकिंग अ बाथ इन द लेक। सो इन द लेक, in the river, we can say the whale is an animal that lives in the ocean. And likewise, when we describe about mountains, valleys, forests, and countryside mean the surroundings of a specific town or city, we can say. So when an object or an individual is present as a physical location in mountains, we use the preposition in. I was walking in the countryside. Countryside से मुराद गिद्दो निमा की जो जगह होती है कि मैं वहां पर चल फिर रहा था। And we say a pleasant air is blowing in the valleys, के वादियों में खुशगवार हवा चल रही है। तो वादियों में एक खास लोकेशन के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा है, आबो हवा की बात हो रही है, फिजिकल प्रेजेंस की बात हो रही है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। एंड वी कैन से आई फाउंड अ डेड बॉडी इन द फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वैलीज एंड कंट्रीसाइड, दीज आर द बिगर प्लेसेस एंड वी आर शोइंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ समथिंग इनसाइड देम। तो हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू शो द प्लेस और लोकेशन ऑफ समबॉडी, एन इंडिविजुअल और समथिंग at a certain place. So these were some examples where we use preposition in to show time and place or position or location of something or somebody. So now we will talk about preposition inside, that is derived from the basic preposition in. Time frame preposition inside has a very narrow concept. For example, we can say you have to complete this work inside this given period of time or inside this month. So inside gives us a meaning that before the end of this time or within this time. So inside का जो time frame के अंदर यूज है वो बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है।
सो हम बेसिकली प्रेपोजिशन इन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने किसी टाइम को या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताना होता है। जब हम बात करते हैं लोकेशन की या प्लेस की, तो इनसाइड हमें एक ब्रॉडर सेंस में मिलता है, लेकिन इनसाइड और इन में डिफरेंस क्या आ जाता है। इनसाइड हमें यह बताता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक चीज या एक इंडिविजुअल एक ऐसी जगह पर मौजूद है दैट इज इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय सम वॉल्स और बैरियर्स और बाउंड्रीज वी कैन से। सो इनसाइड हमें फिजिकली भी इसकी मीनिंग से हमें यही पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी बंद जगह के अंदर मौजूद है। तो जैसे हमने पहले एक एग्जांपल पढ़ी थी कि द बॉय इज इन हिज हाउस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द बॉय इज इनसाइड हिज हाउस। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन द फर्स्ट एग्जांपल द बॉय इज इन हिज हाउस, एक लड़का अपने घर में मौजूद है या अपने घर में है, उसकी जनरल है प्लेस की बात कर रहे हैं, उसके एक लोकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें द बॉय इज इनसाइड हिज रूम, इट मीन्स कि जो लड़का है वो उस चार दीवारी के अंदर मौजूद है, इनक्लोज्ड है, सराउंडेड बाय सम वॉल्स है। सो प्रेपोजिशन इनसाइड हमें ब्रॉडर सेंस में ये मीनिंग देती है कि आप एक सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, एक इनक्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। So we can take another example that there was a gold inside the box, कि इनर पार्ट ऑफ द बॉक्स में हमें एक चीज पड़ी हुई नजर आई, वो क्या थी? गोल्ड थी। इनसाइड द बॉक्स दैट वाज इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय सम वॉल्स ऑफ द बॉक्स, के उसके अंदर वो इनक्लोज्ड थी, बंद थी। तो स्पेसिफिकली इनक्लोज्ड होना, सराउंडिंग में होना या बंद होना, ये मीनिंग हमें प्रेपोजिशन इनसाइड से मिलता है कि इट हैविंग बिकम द इनर पार्ट ऑफ सम लोकेशन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक आई बिकेम वेरी सैड आफ्टर ऑब्जर्विंग द लाइफ इनसाइड द कैंप। इनसाइड द कैंप, के कैंप के अंदर, उसकी सराउंडिंग में, उसके अंदर की सरफेस में जो कि इनक्लोज्ड थी, चारों तरफ से बंद थी, दीवारों के अंदर जो लाइफ थी, लोग थे, उनको देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब इसमें यह सेंस मिलती है कि जो चीज अंदर कवर्ड है वो हम अपनी इजाजत से या किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बाहर निकाली जा रही है, वो अपनी मर्जी से बहुत शाज़ो नादिर बाहर आती है या वो बाहर नहीं आ सकती। तो इसमें जो मीनिंग है वो मैक्सिमम ये हमें मिलता है कि आप चारों तरफ से एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं और उसमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो वो मौजूद होता है। So these were the basic differences between preposition in and inside. I hope that you have understood very well about their definition and how they are used in different sentences with the location, with place, and with different time phrases. So if you like this information, please subscribe my channel and become the part of my team. Inshallah, see you in the next video with a new lecture with a new information. Till then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much and Allah Hafiz.